Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, you know that we are dealing with a new topic, that is conditional clauses. And in the previous lecture we dealt with zero conditional clause and first conditional clause. So let me remind you that zero conditional clause is used when we talk about universal truth or general truths. Okay? First conditional clause is used when we talk about things that are possible, that may happen in present or in the future. And when we use these conditional clauses in a sentence, remember that whenever we use a conditional clause in a sentence, the sentence becomes conditional sentence. Got it? That sentence is known as conditional sentence in which a conditional clause is used, whether it is zero conditional, first to second or third. All sentences are known as conditional sentences. Okay? So let's move towards today's lecture. And in this lecture we shall deal with second conditional clause and third conditional clause. So let's first move to second conditional clause. So what is the second conditional clause? So second conditional clause is used when we talk about imaginary things. When we talk about imaginary things, when we talk about impossible things, or when we talk about unreal things. Remember that. So whenever we talk about imaginary, impossible or unreal things, we use second conditional clause, and that sentence is known as second conditional sentence. Okay? Now what is the structure of second conditional clause? It is if plus past simple plus would. So this is the structure of second conditional clause. So let me give you some important examples so that you may understand what is second conditional clause. The example is here. If I were a king, past simple, I would, so we have used would here, I would help the poor. Now one thing I want to add about second conditional clause, that it is used for imaginary situations, imaginary and unreal things, in the present or future. It is important, either in the present or future. Are you getting me? So this second conditional clause is opposite of first conditional clause, because we read that in first conditional clause we talk about situations that may happen, that are possible. मगर इसमें बेटा possibility नहीं होती, 0% possibility होती है किस sentence में? जो second conditional sentence होता है. ठीक है? जैसे example है यहाँ पे, if I were a king, अगर मैं king होता, ठीक है बेटा, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इस वक्त अगर मैं इस वक्त किंग होता, मैं क्या करता? आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीब लोगों की मदद करता. बेटा क्या ये मुमकिन है कि मैं बादशाह बन सकता हूँ इस प्रेजेंट में? मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ या फ्यूचर की बात करूँगा, दोनों सूरतों में. सो आई नो दैट मैं बादशाह नहीं बन सकता हूँ. ठीक है? इट इज़ डेड इम्पॉसिबल. आर यू गेटिंग मी? तो ये ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं. ठीक है? तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं. तो इसे हम किस में डालते हैं? सेकंड कंडीशनल क्लास में. अकॉर्डिंगली और एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगा. सेंटेंस है, इफ इट डिड नॉट रेन वी वुड, if it did not rain we would go on a picnic. अब सिचुएशन ऐसी है बेटा, कंडीशन ऐसी है, हम पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो जो ही हम अब गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है, बारिश बरस रही है, ठीक है। तो अब हम वेट करते हैं कि व्हेन विल द रेन स्टॉप, ओके। फिर हम आपस में बात करते हैं, क्या इफ इट डिड नॉट रेन, काश की बारिश ना होती है, प्रेजेंट में ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है। अगर बारिश ना होती, अगर बारिश ना बरसती तो क्या होता, वी वुड गो ऑन ए पिकनिक। इट मीन्स दैट हमने अब पिकनिक कैंसिल किया क्योंकि बारिश बरस रही है लगातार, अब हम वेट कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो अब हमने डिसाइड किया लेट्स कैंसिल द पिकनिक। अब हम बात कर रहे हैं जो अपने फ्रेंड से वापस जब हम घर जा रहे हैं, ओ यार क्या हुआ, इफ इट डिड नॉट रेन, काश की बारिश ना होती, वी वुड गो ऑन ए पिकनिक, हम पिकनिक जाते। मगर ये बिल्कुल अब डेड इम्पॉसिबल है, अब ये मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि अब हम वापस आ रहे हैं तो अब वापस नहीं जा सकते हम, ठीक है, दोबारा पिकनिक पे नहीं जा सकते, इसी टाइम को नहीं जा सकते। अब हमें कोई दूसरा दिन डिसाइड करना होगा, उसी वक्त जा सकते हैं। आर गेटिंग मी? अकॉर्डिंगली और एक सेंटेंस और एक एग्जाम्पल, इफ माई हाउस वॉज इन द फॉरेस्ट, आई would feel relaxed and happy etc. क्या if my house was in the forest, काश कि मेरा घर कहाँ पे होता, जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। काश कि मेरा घर कहाँ पे होता, फॉरेस्ट में, आई वुड फील हैप्पी और आई विल फील रिलैक्स्ड, ठीक है। तो वहाँ मैं बहुत खुश महसूस करता, रिलैक्सड महसूस करता। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरा घर तो सिटी में है, ये कैसे फॉरेस्ट में होगा, ये इमेजिनरी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वन कंडीशन अगेन है, यू कैन चेंज द सेंटेंस बेटा। कैसे? जो ये सेंटेंस मैंने पहले लिखा ना यहाँ पे, इफ इट डिड नॉट रेन वी वुड गो ऑन ए पिकनिक, हम ये भी कर सकते हैं बेटा। इफ क्लास को हम बीच में भी ला सकते हैं। कैसे स्टार्ट हम करेंगे ऐसे सेंटेंस, वी वुड गो ऑन ए पिकनिक, वी वुड गो ऑन ए पिकनिक, तो पिकनिक के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट किया हमने वी से, वी वुड गो ऑन ए पिकनिक कॉमा इफ इट डिड नॉट रेन, ये भी ठीक है, चाहे आप पहले इफ लाएं या बाद में इफ लाएं, दोनों ठीक। इसी तरह यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, तो हम ये भी कह सकते हैं आई वुड हेल्प द पुअर कॉमा इफ आई वर ए किंग, ये भी ठीक है। और गेटिंग मी, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, ना ही सेंटेंस में कोई चेंज आएगी। और गेटिंग मी, तो बुक पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप देखेंगे, आप खुद भी सोचेंगे, ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करेंगे जो इम्पॉसिबल होंगे। मगर स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या, पास्ट इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड कंडीशनल क्लास। सो इट इज नंबर 4, थर्ड conditional class. So what is this third conditional class? So remember that it is used to talk about things that did not happen in the past. ठीक है, things that did not happen in the past. Simple. नहीं, जब हम ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, ऐसी सिचुएशंस का जिक्र करते हैं, ठीक है, जो पास्ट में हुई, इट मीन्स दैट दिस थर्ड कंडीशन क्लास हैज डायरेक्ट रिलेशन विद पास्ट टेंस। अरे गेटिंग मी, कुछ ऐसा हुआ हो जो पास्ट में हुआ हो, फिर उसका जिक्र हम करते हैं, प्रेजेंट में जिक्र करते हैं। मगर हुआ कब है, पास्ट में हुआ है, जिक्र कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, तो वो हम इंक्लूड करते हैं। ऐसी अगर कोई कंडीशन हो बेटा जो पास्ट में हुई है, कोई एक्शन, ठीक है, तो फिर वो हम इंक्लूड करते हैं किसमें, थर्ड कंडीशनल क्लास में। तो इसका स्ट्रक्चर पहले आपको जानना होगा, स्ट्रक्चर क्या है, इट इज इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, याद रखिए। तो सेकंड कंडीशनल क्लास में हमने पास्ट सिंपल यूज किया था, मगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा। इसके साथ साथ हम यूज करेंगे प्लस वुड यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, माइट यूज कर सकते हैं, है यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा। हाँ, माइट और हैव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। गॉट इट? लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, क्या, इफ ही हैड स्टडीड
harder, okay, comma, he would have passed. अब इसी को देखते हैं बेटा. इफ ही हैड स्टडीड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हो गया पास्ट परफेक्ट, फिर हमने वुड यूज किया. अब हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस है क्या. तो सेंटेंस है इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती तो क्या होता, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो चुका होता. यानी इस सेंटेंस को रिलेशन किसके साथ है, पास्ट के साथ. ठीक है, हम किसी फ्रेंड का जिक्र कर रहे हैं, राइट. क्या हो यार, तो वो तो फेल हो गया 10th में. अच्छा, वो काश यार, काश कि उसने मेहनत की होती, काश कि उसने सख्त मेहनत की होती तो वो पास हो जाता. और गेटिंग मी. अब हम अपने फ्रेंड का पास्ट डिस्कस करते हैं, उसका पास्ट डिस्कस करते हैं, उसका पास्ट कैरियर डिस्कस करते हैं. अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो ऐसा होता. आर यू गेटिंग मी. तो ये सारा इंक्लूड होता है किसमें, थर्ड कंडीशनल क्लास में या सेंटेंस में. बट डोंट गेट कंफ्यूज. फर्स्ट कंडीशनल क्लास में हमने पढ़ा, हमने वहां पे एक सेंटेंस लिखा था, इफ यू रिमेंबर, क्या, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास फॉर एग्जाम्पल, या यू विल गेट डिस्टिंक्शन. तो फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है, सेंटेंस की मीनिंग है अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो आप डिस्टिंक्शन लाओगे, आप डिस्टिंक्शन लाओगे. तो यहाँ अब फर्क क्या है, शाबाश बेटा, फर्क ये है बेटा, जो ये वाला सेंटेंस है सेकंड, इसकी रिलेशन प्रेजेंट टेंस से है या फ्यूचर से है. ठीक है ना बेटा, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे. ये सेंटेंस भी इसी रिलेटेड है, मगर फर्क क्या है, पहला सेंटेंस इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, ये पास्ट के बारे में है. अगर उसने, अब जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे मैं नंबरिंग देता हूँ, सेकंड सेंटेंस हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की. अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा होगा फ्यूचर में. आर यू गेटिंग मी. मगर जो यहाँ पे है थर्ड कंडीशनल क्लास, ये हो चुका है ऑलरेडी, अब कोई फायदा नहीं है इसको नसीहत करने का, इसने मेहनत की ही नहीं, चक्रत वनी में नसीहत, ठीक है, मगर इसने माना ही नहीं. आर यू गेटिंग मी. अब आगे जाके आप जाएं, अब जब आप आके उसे मिलेंगे, इसी फ्रेंड को मिलेंगे, इसको आपने नसीहत की होगी, ठीक है, काश मेरा माना होता, नालायक कही के, अगर आपने सख्त मेहनत की होती यू वुड हैव पास्ड. अब कोई फायदा नहीं, अब आपको क्या करना है, जस्ट वीप. ओके, इट मीन्स दैट इट इज नॉट डेड इम्पॉसिबल. अब आप ये नहीं कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, बाकी आगे की सोचिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड हैव हेल्प्ड हर. अब हम इफ को नहीं लाएंगे बेटा, पहले वुड ही को लाएंगे. दोनों मैंने पहले ही बताया ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम पास्ट के रिगार्डिंग है. कब, इफ आई हैड हैड हिज एड्रेस. हैड के बाद जब दो हैड जब एक साथ आते हैं, याद रखिए बेटा, व्हेन देयर आर टू हैड्स साइड बाय साइड, ये बनता है पास्ट परफेक्ट. याद रखिए क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट. तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ आई हैड हैड हिज एड्रेस. अगर मुझे उसका पता होता मैं जरूर उसकी मदद करता. क्योंकि अब हम पास्ट की जिक्र की बात कर रहे हैं, पास्ट का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता, एक होता है एड्रेस है, नहीं है ही नहीं बिल्कुल, वो अब पास्ट का हम जिक्र कर रहे हैं. और गेटिंग में किसी फ्रेंड के रिगार्डिंग हम, या कोई पुअर बेचारा था, उसकी हेल्प करनी थी, अब आप अपने फ्रेंड को कहते हैं अरे यार मैं ज़रूर उसकी मदद करता. अच्छा, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, हाँ, अरे यार अगर उसका एड्रेस मेरे पास होता, या अगर उसका मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास होता, आई वुड हैव हेल्प्ड, मैं उसकी मदद ज़रूर करता. तो ये पास्ट के बारे में है, ये पास्ट इवेंट्स के बारे में है. आर गेटिंग मी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रेजेंट और फ्यूचर. तो अकॉर्डिंगली लास्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा. तो एग्जाम्पल ऐसे हम देंगे, इफ यू हैड acted upon my advice, come on, you would not be ashamed. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है,
इफ यू हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, अगर आपने मेरी नसीहत मानी होती, पास्ट का जिक्र है, यू वुड नॉट बी अशेम्ड, तो आपकी इंसल्ट नहीं होती, ठीक है, तो आप बुरा महसूस नहीं करते, तो आपको शर्मिंदगी का ऐसा मतलब सामना नहीं करना पड़ता, बट आपने माना ही नहीं, अब क्या कर सकते हो आप? आर यू गेटिंग मी? सो इन दिस वे we have finished conditional sentences and conditional clauses. Now you need to revise the whole topic, you need to learn all the structures by heart, and you are surely going to face some questions on this very topic in your examination, inshallah, in your U2 examination. I will see you in the next lecture. Till then, take care and fi amanullah.